Okay, so let's start. Okay, so the recording has started. Okay, is my screen visible? So first we'll see which topics we are going to discuss today. Okay, so these are the maths topic which we will be discussing today. First one is the modular arithmetic. Okay, simple addition, subtraction, multiplication, and division operations on modulo. Then the next we will see modular exponentiation. What is modular exponentiation? अगर मुझे a to the power x, let's say a to the power x modulo m पता लगाना है, तो उसको कैसे पता लगा सकते हैं? In a very fast way. If I have to find a to the power x, then I can just run a loop, right? From 1 to x and keep multiplying a again and again. But there are some efficient ways to do that. One is using binary exponentiation, and if we also modulo it with some number, then it's called modular exponentiation. Then we'll see modular multiplicative inverse, NCR modulo m, Coinbagger formula. I think many of you must be familiar with this formula. Then these two formulas also we will see. So first let's start with the modular arithmetic. Okay, सो मॉड्यूलो मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर पता लगाना, राइट? सो लेट्स से मुझे लेट्स से आई हैव टू फाइंड 10 मॉड्यूलो 3, देन व्हाट विल बी द आंसर? एनीवन? सिंपल है, One. रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1, राइट? अगर मुझे 125 modulo 5 पता लगाना है, then the remainder is going to be 0. Okay, so this is the modulo. Modulo means finding the remainder. So if I have to find remainder of two numbers which I'm adding, a plus b modulo m, then I can first add those two numbers and then find the modulo, or I can first modulo the first number, then the second number, then add their remainders and then modulo it again to find my answer. ठीक है, let's see an example. अगर मुझे पता लगाना है 17 modulo 23, 17 प्लस 23 मॉड्यूलो 5, ठीक है? तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स को. आंसर क्या होगा? 40. 40 मॉड्यूलो 5 क्या होता है? 0, राइट? दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? 17 मॉड्यूलो 5 प्लस 23 मॉड्यूलो 5. पहले दोनों को मॉड्यूलो करते हैं, दोनों को पहले मॉड्यूलो करेंगे, उसके बाद जो भी उनका रिमाइंडर होगा उससे ऐड करके 5 से मॉड्यूलो कर देंगे. So 17 modulo 5 is going to be 2. Next 23 modulo 5, it's going to be 5. 17 modulo 5, it's going to be 2. Then 23 modulo 5, it's going to be 3, right? फिर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 5, and 5 modulo 5 is 0. Okay, so I'll get the same result. So this is the formula for addition. नेक्स्ट लेट्स सी मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम है जैसा एडिशन का है. ए मल्टीप्लाई बी. अगर मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका मॉड्यूलो पता लगाना है, so first I can multiply these two numbers and then modulo it, or I can first modulo the two numbers, find their remainders and then multiply them and then modulo them again. Okay, so the result is going to be the same whether I do this left hand side or this right hand side. Okay, let's see an example. uh, let's see, I have to do 7 into 6 modulo 5, right? So 7 into 6 modulo 5. First, let me multiply these two numbers. I'll get 42. Okay, then 42 modulo 5. I'm going to get 2, right? Then let's first modulo them. Let's find the remainder. So 7 modulo 5. 7 modulo 5 क्या होता है? 7 modulo 5 2, राइट? तो 2 कर देंगे यहाँ पे. देन 6 मॉड्यूलो 5. 6 मॉड्यूलो 5 क्या होगा? 1. 1 कर देंगे यहाँ पे. उसके बाद मॉड्यूलो 5 करेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा? 2 मॉड्यूलो 5 विच इज 2. सो आई विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा चेंज होगा. सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? ए सब्ट्रैक्ट बी.
मॉड्यूलो m, अगर मुझे ये पता लगाना है, ठीक है, देन इट इज इक्वल टू a मॉड्यूलो m प्लस b माइनस b मॉड्यूलो m। ओके, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे m भी लिखेंगे हम। एक एक्स्ट्रा m क्यों लिखा, ताकि जो भी हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड्यूलो m, here I am assuming that a is going to be greater than b. Okay, let's see an example. Suppose I have to do 17 minus 11 modulo 5, 17 minus 11 modulo 5। तो क्या होगा, पहले 17 को 11 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6, 6 modulo 5, 6 modulo 5 is 1। The other way to do this is, first I'll do 17 modulo 5, 17 modulo 5 करेंगे तो क्या होगा 2, 11 modulo 5 करेंगे तो क्या होगा 11 modulo 5, 11 modulo 5 1, राइट। और एक एक्स्ट्रा भी प्लस 5 कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस 5 मॉड्यूलो 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 6 मॉड्यूलो 5 होगा, 6 मॉड्यूलो 5 इज 1। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या था, इस एग्जांपल में यहाँ पे तो अगर हम प्लस 5 भी नहीं करते तब भी हमारा सेम आंसर आता 1 मॉड्यूलो 5, लेकिन ये प्लस 5 करने की क्या जरूरत है ये अभी इस एग्जांपल में पता चलेगी। सपोज हमें करना है 21 माइनस 14, राइट, 21 माइनस 14 मॉड्यूलो 5, तो क्या होगा ये 7 मॉड्यूलो 5। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 21 माइनस 14 मॉड्यूलो 5 हो जाएगा 7 मॉड्यूलो 5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब पहले मॉड्यूलो करते हैं, 21 मॉड्यूलो 5 क्या होगा 1, 14 मॉड्यूलो 5, 14 मॉड्यूलो 5 क्या होगा 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस 5 नहीं करता हूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, राइट, माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन we want our result to be positive, that's why we have added an extra m over here। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 होगा तो 2 मॉड्यूलो 5 हो जाएगा। ओके, माइनस 3 मॉड्यूलो 5 भी तो 2 होगा ना। हाँ, माइनस 3 प्लस 5 करेंगे 2 हो जाएगा, देन 2 मॉड्यूलो 5। अगर हम लोग सिर्फ माइनस 3 मॉड्यूलो 5 करें तो हाँ, माइनस 3 मॉड्यूलो 5 भी 2 ही होता है। ठीक है, लेकिन वो 2 क्यों होता है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर ना करें तो फिर वो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा, क्योंकि मॉड्यूलर अरिथमेटिक में क्या होता है, अगर मुझे x मॉड्यूलो m पता लगाना है तो x में चाहे मैं x में अगर मैं m को कितने भी बार ऐड करूं तो मॉड्यूलो सेम रहता है। हाँ, माइनस 3 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन हम पॉजिटिव में ही हमारा आंसर चाहते हैं, हम लोग नेगेटिव में नहीं चाहते, इसीलिए एक एक्स्ट्रा 5 ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, ताकि माइनस 3 की जगह 2 आ जाए। तो सब्ट्रैक्शन में, अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में काफी चेंज हो जाएगा। जैसे एडिशन में तो सिंपल a प्लस बी मॉड्यूलो m, ठीक है, ये कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में भी सिंपल ये चीज कर दिया। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल सिंपल हमने सब्ट्रैक्ट पहले मॉड्यूलो किया फिर सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर को। डिवीजन में काफी चेंज हो जाता है। डिवीजन में अगर मुझे a डिवाइडेड बाय b मॉड्यूलो m करना है, इसमें काफी चेंज होगा। इसमें क्या, इसका क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स। ठीक है, ये -1 क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स। सो b इनवर्स मॉड्यूलो m। ठीक है, अब ये b इनवर्स क्या है, ये b इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये b इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b अंडर मॉड्यूलो m। इसके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूलो अरिथमेटिक के बाद, फिर मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या होता है, बी इनवर्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए फॉर्मूला जरा नोटिस करो, a डिवाइडेड बाय b मॉड्यूलो m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स मॉड्यूलो m। ओके, अच्छा, अब ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक की जरूरत ही क्या है,
क्यों इसे यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी तुम लोग बहुत बार देखोगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बोला गया होता है 10⁹ +7 के साथ मॉड्यूलो करने के लिए रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। रिजल्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंटीजर में फिट नहीं हो सकता है या लॉन्ग लॉन्ग में भी फिट नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर में कितने बड़े नंबर फिट हो सकते हैं, एक रफ आइडिया, इंटीजर में अबाउट 10⁹ के रेंज में, या फिर ऐसा बोल सकते हो 9 × 10⁹, ऐसा कुछ 10⁹ लेके चलो टू बी सेफ। तो 10⁹ के आसपास जो नंबर्स होंगे वहां तक इंटीजर में फिट हो सकते हैं। ओके, लॉन्ग लॉन्ग में इसका डबल, लॉन्ग में पावर डबल हो जाएगा। लॉन्ग में क्या होता है 10⁻18 तक के जो नंबर्स होते हैं वो फिट हो सकते हैं। ओके, अराउंड 10⁻18 से थोड़े से बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन पावर में देखे तो 10⁻18 तक है। अगर तुम 10⁻19 को फिट करने जाओगे लॉन्ग में तब नहीं होगा। 10⁻20 या उससे बड़े किसी को भी फिट करोगे तो वो फिट नहीं हो पाएगा। क्या होता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है या कोई और नंबर आ जाता है, क्योंकि वो उसके लिमिट से ही बाहर चला जाता है, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इंटीजर की मैक्सिमम रेंज है 10⁹9, लॉन्ग की मैक्सिमम रेंज है 10⁻18। अगर हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें आंसर ऐसे 10⁻25 तक, इतना बड़ा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इतने बड़े आंसर को हम इंटीजर या लॉन्ग में फिट ही नहीं कर सकते। या तो उस प्रॉब्लम में हमें स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, या तो उस प्रॉब्लम में हमें मॉड्यूलो अरिथमेटिक यूज करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को फाइनली प्रिंट करने के लिए। तो बहुत सारे केसेस में मॉड्यूलो अरिथमेटिक यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे केसेस में बोला जाएगा कि जो भी रिजल्ट है उसे 10⁹9 +7 से मॉड्यूलो करने के लिए। ठीक है, तो इस रिजल्ट को फिर हम 10⁹9 +7 से मॉड्यूलो करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे अगर रिजल्ट बहुत बड़ा हुआ तो इसलिए मॉड्यूलो अरिथमेटिक का यूज होता है। ठीक है, एक यूज हो जाता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटीजर ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए, बहुत बड़े रिजल्ट्स को आउटपुट करने के लिए। ठीक है, ओके, तो देखो इसीलिए अगर अगर हम मॉड्यूलो अरिथमेटिक को यूज करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर मुझे बोला गया है कि मुझे m = 10⁹9 +7 इससे मॉड्यूलो करना है। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, सपोज कोई नंबर है ए अगर मेरे पास है 10⁻18। ओके, ए भी लॉन्ग है, ए का टाइप लॉन्ग है, बी इज ऑल्सो लॉन्ग टाइप, बी इज ऑल्सो अराउंड 10⁻18। अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दूंगा ए प्लस बी, अगर मैं सोचता हूँ कि डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करता हूँ उसके बाद m के साथ मॉड्यूलो कर दूंगा, तो डायरेक्टली ऐड करने पे क्या होगा 10⁻18 + 10⁻18 2 × 10⁻18, तो कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी। बहुत सारे केसेस में ये ज्यादा भी बड़ी हो सकती है, 10⁻19 20 भी जा सकती है। उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये लॉन्ग की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे बड़ी हो गई तो उसके बाद यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो हमने मॉड्यूलो m लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा और हमारा रिजल्ट गलत आएगा। इसीलिए जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं, अगर प्रॉब्लम में बोला गया है हमें जो रिजल्ट है वो मॉड्यूलो करके प्रिंट करना है, तो वी शुड ट्राई टू डू मॉड्यूलो एट एवरी स्टेप। तो इसीलिए हम पहले ए को मॉड्यूलो m करेंगे, फिर बी को मॉड्यूलो m करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। अगर हम श्योर है कि ए जो होगा वो m से छोटा ही होगा, मॉड्यूलो करने से क्या होता है जो भी रिमाइंडर आता है वो m से छोटा ही होगा। तो अगर हम श्योर है कि ए को हमने मॉड्यूलो कर रखा है m से, बी को मॉड्यूलो कर रखा है, तभी हम दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे, नहीं तो फिर हम ऐसे ऐड करेंगे, नहीं तो फिर हम ए मॉड्यूलो m ऐसे ऐड करेंगे, फिर बी मॉड्यूलो m ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी दोनों का रिजल्ट होगा उसे फिर मॉड्यूलो m करेंगे। अच्छा, तो ये था एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हमने इसे
डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया होता, बिना ए को मॉड्यूलो एम किए, बिना बी को मॉड्यूलो एम किए, डायरेक्टली अगर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया होता, तब तो यहाँ पे 10⁻36 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती। यहाँ पे पहले ही इंटीजर, मॉड्यूलो करने से पहले ही इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले ही ए को मॉड्यूलो एम करना है, ताकि 10⁻18 मॉड्यूलो 10⁻9+7 होगा, तो 10⁻9 या उससे कोई छोटा नंबर आएगा। यहाँ पे भी बी को मॉड्यूलो करेंगे तो 10⁻9+7 से कोई ना कोई छोटा ही नंबर आएगा। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन बी श्योर दैट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻18। फिर उसे फर्दर हम, तो इंटीजर ओवरफ्लो तो नहीं होगा, फिर उसे अगर हम फर्दर मॉड्यूलो एम करेंगे तो फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 10⁻9+7 से छोटा होगा। सो वी कैन बी श्योर दैट एट एवरी स्टेप देयर इज नो इंटीजर ओवरफ्लो। सो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट वी आर डूइंग modulo at every step. Okay, so this, and then in subtraction as well, while we are subtracting two numbers, we should also be sure to do modulo at every step, and we should also make sure to add an extra m after we have subtracted the two numbers. Okay, so that our result is not negative, it's positive. Negative result भी valid होता है, but प्रॉब्लम्स में क्या होगा, अगर आंसर 2 है तो तुम अगर आंसर मॉड्यूलो 10⁻9+7 करने बोला है, ठीक है, या मान लो मॉड्यूलो 5 करने बोला है अगर रिजल्ट को, तो अगर तुम अगर आंसर है 3 और तुम अगर आंसर -2 प्रिंट करो तो -2 भी ठीक है, लेकिन वो मैच नहीं करेगा ना जो फाइनल रिजल्ट है 3 से, तो फिर रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए +m भी करो हर एक स्टेप में सब्ट्रैक्ट करने के बाद। फिर है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में देखेंगे बी इनवर्स क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं उसे एफिशिएंटली। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन। ओके, सो मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन, देखो अगर हमें ये चीज पता लगानी है, ए टू द पावर p मॉड्यूलो m, ठीक है, अब let's see why we need to modulo over here. बहुत सारे केसेस में क्या होगा, a to the power p will be very large if p is large enough. अगर a की वैल्यू लेट्स से 10 है and p की वैल्यू, if the p's value is 36, so if we are not doing modulo, then the result is going to be very large, it will not fit long or integer, right? So we need to modulo over here, and the question will tell us to do modulo with some number. Okay, so if we have to find this thing, a to the raised to the power p modulo m, then how we can find it? The first thing we can do is to just run a simple loop, एक simple loop चलाएंगे 1 से p तक, a को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर m से मॉड्यूलो करते जाएंगे। ओके, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ p। बहुत ही इनएफिशिएंट है इस तरीके से a टू द पावर p मॉड्यूलो m पता लगाना। इससे जो बेटर ऑल्टरनेटिव है वो है उसमें थोड़ा बाइनरी का यूज होता है, वो है मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन यूज करना। मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन से क्या होगा, लॉग p में ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट बिग ओ p के मुकाबले log p में ही we can find a to the power p modulo m. Okay, so let's see how it works. So over here you can see its code. ठीक है, कोड को समझते हैं। तो a to the power p पता लगाना है। पहले क्या करेंगे, पहला तो स्टेप होना चाहिए a को मॉड्यूलो m करेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज भी मैं जरा बता देता हूँ, अगर मुझे ये चीज शायद यहीं पे लिख देनी चाहिए थी, पावर का भी लिख देता हूँ फॉर्मूला। If I have to find a to the power p modulo m, then it is same as finding a modulo m. अगर a to the power p modulo m करना है तो वो सेम है कि पहले मैं a को m से मॉड्यूलो करूँ, रिमाइंडर पता चल जाएगा मुझे, फिर रिमाइंडर को मैं p to the power रेस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं m से मॉड्यूलो कर दूंगा। तो दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा, देखते हैं। और जरा तुम ये भी नोटिस कर सकते हो कि अगर मान लो मुझे मैनुअली
मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो है ना, हमें कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर मुझे मैनुअली सपोज ये पता लगाना है 12 to the power 10, ओके, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो क्या करे, मॉड्यूलो लेट्स से 100, मॉड्यूलो लेट्स से 5, ठीक है। इफ आई हैव टू फाइंड दिस थिंग, अगर मैं पहले पावर पता लगाऊं उसके बाद मॉड्यूलो 5 करूं, ठीक है, मान लो मुझे मैनुअली कैलकुलेट करना है, ये बिना किसी कैलकुलेटर यूज किए मैनुअली कैलकुलेट करना है। हाउ आई कैन डू इट? फर्स्ट मेथड दैट आई कैन डू इज, फर्स्ट आई विल फाइंड द पावर 12 to the power 10। अब देखो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, 12 to the power 10 मैनुअली कैलकुलेट करके पता लगाना। फिर जो रिजल्ट आएगा बहुत बड़ा रिजल्ट होगा, उसे फिर मैं 5 के साथ डिवाइड करके देखूंगा रिमाइंडर क्या आता है, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। बहुत बड़ा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलो अरिथमेटिक की हेल्प ले सकते हैं। हमें पता है a to the power p मॉड्यूलो m इज सेम एज a मॉड्यूलो m to the power p मॉड्यूलो m, राइट। सो फर्स्ट वी विल मॉड्यूलो 12 विथ 5, तो 12 को 5 से मॉड्यूलो करते हैं, क्या आएगा रिजल्ट? 2, राइट। उसके बाद 2 to the power 10, 2 to the power 10 तो पता ही होगा सबको, 2 to the power 10 क्या होता है? 1024, राइट। तो 1024 को फिर मैं मॉड्यूलो 5 कर दूंगा, रिजल्ट होगा 4। तो देखा, इस कितनी जल्दी हमने पता लगा लिया, 12 to the power 10 मॉड्यूलो 5, ठीक है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक की हेल्प से बहुत जल्दी पता लगा लिया। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन में हेल्प करता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसीलिए हमने यहाँ पे ए को मॉड्यूलो एम किया है, ठीक है। पहला रीजन है यहाँ पे ए को मॉड्यूलो एम करने का, वो है कि ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे हम लोग ए मल्टीप्लाई बाय ए कर रहे हैं, अगर ए मान लो बहुत बड़ा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ए 10 to the power 18 है, तो ए इंटू ए करेंगे, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा इस स्टेप में, ठीक है। तो इंटीजर ओवरफ्लो को भी अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ए मॉड्यूलो एम किया हुआ है, ओके। तो पहला स्टेप तो यही होगा, मेक श्योर दैट यू आर फर्स्ट द ए हैज बीन मॉड्यूलोड विथ एम, ओके। एंड अच्छा, यहाँ पे शायद एम भी एक दे देना चाहिए आर्ग्यूमेंट में, ओके। पहला स्टेप ए को मॉड्यूलो किया एम के साथ, उसके बाद रिजल्ट को इनिशियलाइज करेंगे, रिजल्ट को 1 रखेंगे इनिशियली, देन लूप चलेगा एक, वाइल द पावर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्या करें हम लोग, अगर p %2 इज, इसको जरा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। देखो, इफ p मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1, अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट में a को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मॉड्यूलो m कर देंगे, ठीक है। अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट में a को मल्टीप्लाई किया, राइट। अगर पावर इवन है तो a को a से मल्टीप्लाई किया, ओके, और पावर को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये दो चीज, अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू ए, अगर पावर इवन है तो ए इज इक्वल टू ए इंटू ए। बस ये चीज करते जाना है जब तक, और यहाँ पे एक चीज और, p-1 भी कर देंगे क्योंकि मैंने एल से एक्स्ट्रा डाल दिया है। ठीक है, और p माइनस माइनस भी एक एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एल्स, अगर p इवन है तो a इज इक्वल टू ए इंटू ए मॉड्यूलो m, a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2।
अब इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो बस इतना याद रखो, अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करो और पावर में ए 1 सब्ट्रैक्ट करो। अगर पावर इवन है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो और पावर को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, भैया अब देखते हैं। भैया हाँ, एक बार ये बता दीजिए ना, ये जो अभी लिखा है और इस आप मॉडिफाई करने से पहले जो लिखा था वो सेम कैसे हुआ? सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मॉडिफाई करने से पहले क्या कोड था दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे होगा मॉडिफाई करने से पहले क्या कोड था। मॉडिफाई करने से पहले पी बाई इफ टू हम हर कंडीशन बार था, कर रहे हैं। हाँ इफ कंडीशन था, पी माइनस माइनस नहीं था, एल्स कंडीशन नहीं था यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, अगर पी ऑड होगा, अगर पी ऑड होगा तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल्स तो यहाँ पे था नहीं, तो ये जो नीचे जो 2 लाइंस लिखे हुए थे वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर पी ऑड है तब भी ये होगा, अगर पी इवन है तब भी ये वाला, ये दोनों लाइन चलते हैं। ठीक है, एल्स डालने से पहले। तो रिजल्ट इनटू ए मॉड्यूलो एम हो जाता। फिर क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए इंटू ए मॉड्यूलो एम होता, और पी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2। मान लो कि पी ऑड है, पी अगर 5 है तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि पी ऑड है या इवन है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हम, यहाँ पे पहले हम पी माइनस माइनस नहीं कर रहे थे, अब पी माइनस माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब भी पी ऑड होगा, पी मान लो 6 है, तो फिर पी जब भी ऑड होगा, पी मान लो 7 है, तो पहले तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू ए हो जाएगा। उसके बाद 7 माइनस माइनस होगा तो 7 6 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तो हमेशा इवन ही होने वाला है पी। तो अगर पी ऑड है तो उसके नेक्स्ट स्टेप में एल्स वाला कंडीशन चलेगा ही चलेगा उसके नेक्स्ट आइट्रेशन में। ठीक है, यस क्योंकि भैया आप समझ 7 के गए। बाद वो 6 बन जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद ए इंटू ए होगा और 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा पावर, राइट। यस भैया। लेकिन अगर हमने एल्स कंडीशन नहीं डाला होता तो क्या होता, पहले वो 7 जब था पी तो फिर रिजल्ट ए से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों कंडीशन चलेंगे ही, और चलना भी चाहिए था क्योंकि 7 के बाद पहले 6 बनने के बाद ये दो स्टेटमेंट चल रहे थे, अभी भी ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। बस फर्क क्या होगा, ए इंटू ए होगा, 7 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2 होगा, पहले 6 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2 था, अब 7 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2 होगा, तो पावर फिर से 3 बन जाएगा। तो यस देखो भैया। पहले जो चीज हो रही थी सेम चीज अभी फिर से होगी, बस थोड़ा सा कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके, बट सेम चीज अभी भी होगी, राइट। ये थोड़ा, ये यहाँ पे मैंने चेंजेस इसलिए किया क्योंकि ये थोड़ा समझना सिंपल होगा। अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट इनटू ए, अगर p माइनस माइनस, अगर पावर इवन है तो a इज इक्वल टू ए इंटू ए, p डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं कैसे काम करता है। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, ब्लैंक पेज, या तो यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल। सपोज आई हैव टू फाइंड 3 टू द पावर 10, राइट। अभी मैं मॉड्यूलो नहीं कर रहा हूँ, अभी अगर मॉड्यूलो किए बिना भी मैं ये चीज करूंगा तो तब भी लॉग के अंदर ही मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलो अगर मैं नहीं करूँ तब भी मुझे लॉग में पता चल जाएगा। मॉड्यूलो बस इसलिए करे ताकि ओवरफ्लो ना हो, और क्वेश्चन में बोला गया होगा मॉड्यूलो करने के लिए। ठीक है, देखो अगर मुझे 3 टू द पावर 10 पता लगानी है, कैसे कर सकते हैं। पहले देखो पावर क्या है, पावर है 10। 10 क्या है, 10 इज इवन, राइट, इवन है। तो ए जो है, पहले ए था 3, पावर था 10, power is a is equal to 3. Now power is 10 which is even, so a will become 9, okay, and power will become 5, right. Now see, 3 to the power 10 पता लगाना और 5 to the power 3 to the power 10 पता लगाना, और a को पहले लिखता हूँ, 3 to the power 10 पता लगाना और 9 टू द पावर 5 पता लगाना, दोनों इक्वल है, सेम चीज है दोनों। ठीक है, अगर मैं 3 टू द पावर 10 पता लगा रहा हूँ तो 10 इवन है, इवन है तो क्या कर सकते हैं, तो पहले ही 3 में 2 पहले 3 को रेज टू द पावर 2 करते हैं, 9 बनेगा,
और पावर को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 बनेगा, ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, अगर मुझे इससे क्या हुआ, अगर मुझे यहाँ पे मान लो ब्रूट फोर्स से 3 टू द पावर 10 पता लगानी होती तो मुझे 10 स्टेप्स लगते हैं, 10 टाइम्स मुझे लूप में आइटरेट करना पड़ता। लेकिन अगर मुझे इस स्टेप में अगर ब्रूट फोर्स से मुझे पावर पता लगाना है तो पावर देखो, पावर सिर्फ 5 हो गया, पावर पहले से हाफ हो गया, ठीक है। सो वी आर रिड्यूसिंग आवर नंबर ऑफ स्टेप्स बाय हाफ, राइट। तो ये जो p डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2 किया और a इज इक्वल टू a इंटू a किया, इससे वी आर रिड्यूसिंग आवर नंबर ऑफ स्टेप्स बाय हाफ, ओके। एंड finding 3 to the power 10 and 9 to the power 5 is same. Let's see the next step. In the next step 5 is equal to 5, p is equal to 5, so it's odd hai. What we will do, a will remain same, result over here, the result was 1. What will happen, we will just multiply 1a into our result, so result will become 9. Okay, we will just multiply, we will just take 1a and multiply it with our result and reduce the power to 4, right. Now see what we have to do in this step. इस स्टेप के बाद अब हमें क्या करना है, इस स्टेप के बाद अब हमें 9 टू द पावर 4 पता लगानी है, और 9 टू द पावर 4 पता लगाने के बाद उसे हम रिजल्ट से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाइड विद आवर रिजल्ट, then we will get the same answer, that is 9 to the power 5, same answer as before. So see, if we have to reduce our number of steps by half, then our power should be even. Over here our power was even, so we were able to reduce the power by half, and our number of steps also reduced by half. But at this step the power is not even, power has become odd. So to make it even, to make our power even, we will take one extra 9. There are 5 nines over here that we have to multiply. Okay, we want to multiply just 4 9, and we will take one extra 9 and multiply that with our result. And at the end, we will just and at the end, whatever the result should be, the result res will become that result. Okay, so let's say in the next step, power is equal to 4, so it's even. So we will multiply, now we will multiply 9 by 9, and a will become 81, and our power will become 2. So now also we reduced our number of steps by half. So just see, finding out a to the power 4 and finding out 81 to the power 2 are the same thing. Okay, now in the next step, power is equal to 2. This is also even. So what we will do, we will multiply 81 with 81. Okay, and result will remain 9, power will become 1. So just see, at the last step, power will always become 1. At the last step, no matter what, power is always going to become 1 at the last step. Okay, let's say what is 81 into 81. Seven 23 6561. Okay, now at the last step, this is the last step when power has become 1, and at the last step power is always going to be 1, so the last step is always going to be an odd case, right. Now what we will do, what we do in the odd step, we just multiply the result with a. So the result is 6561, power is 1, so we will just multiply 6561 with 9 and we will get our answer. So result a will remain the same, but result will now become our final answer, 9 into 6561. What is 9 into 6561? And power will become finally 0, 59049. Okay, so result will become 59049. So this was the step. If we would have done it by brute force, it would have taken 10 steps. But now you can see it took only 1 2 3 4 5 steps, and in general it takes only
log p steps. Okay, so from a linear time complexity, we reduced it to a log time complexity. Okay, now you got an idea how it's working. You can also try to imagine in terms of binary representation. What will be the binary representation of p over here? P is 10. 10 is what? 10 is 1010 in binary, right? 10 is 1010 in binary. So try to imagine it in binary. If I have, I can say like that, if I have a 0 over here, so it's going to be, if I have a 0 over here, then I will see the binary representation of power. And if in the binary representation of power, the rightmost bit is 0, it means it's an even case. I will do a into a. Okay, then I will do a into a and power divided by 2. Then in the next step, the bit is 1, so it's an odd case. I will do result is equal to result multiply by a and power minus minus. And then in the next step, over here I have a 0, so it's an even case. So you can also try to imagine in binary representation, or you can also just see this example. So now I think you must have got an idea of how it's working, how it's able to reduce the time complexity from linear to log steps. Do you have any question, any doubt in this binary modulo exponentiation? And if we have to just find, if we have to do modulo as well, so we will just do modulo at every step, and rest of the things will remain the same. I had to find not a to the power p, but a to the power modulo m. So I will just add an extra mod m at every step. So over here modulo is equal to m, over here as well modulo m, and over here also modulo m, and the rest of the things will remain the same. Okay, so you have any doubt till now? Okay, modulo exponentiation. Now we will see modulo multiplicative inverse. Okay. Modulo multiplicative. First, see what is modulo multiplicative inverse. So we have a multiplicative inverse, right? What is a multiplicative inverse? What is multiplicative inverse of 2? 1 by 2, right? What is multiplicative inverse of 5? 1 by 5. How do we define multiplicative inverse? Let's say if I have to find multiplicative inverse of x, then multiplicative inverse of x is y such that x multiplied by y is equal to 1, right? Is a real number y, or any real number y, right? Such that x into y is equal to 1, right? So this is how we define multiplicative inverse. कोई भी multiplicative x का जो multiplicative inverse होगा, उससे अगर x को multiply करेंगे, so we should get a 1. Similar concept we have over here as well, modular multiplicative inverse. Only difference, we will have a modulo m over here. The multiplicative inverse of x under modulo m. Just remember that multiplicative of inverse of x is going to be different under different modulo. Let's say x is equal to 5 and m is equal to 7, then the multiplicative inverse will be different than the case when m would have been 8 or 9. तो देखो जैसे जैसे m की वैल्यूज चेंज होगी, x मान लो 2 है और m पहले 3 था, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट m's में x की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी. ओके, ये याद रखो. इस दैट्स व्हाई वी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x अंडर मॉड्यूलो m. ओके, बिकॉज अंडर डिफरेंट मॉड्यूलो x will have different multiplicative inverse. So the multiplicative inverse of x under modulo m is y such that x into y mod m is equal to 1 mod m. Okay, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं such that x into y modulo m is equal to 1. तो x और y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड्यूलो m करेंगे,
आ जाना चाहिए 1, मॉड्यूलो m करेंगे आंसर आ जाना चाहिए 1, तो y को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो देन y विल बी x minus x inverse. Okay, so the definition, a modular multiplicative inverse of an integer a is an integer x. A modular multiplicative inverse of an integer a is an integer x such that a dot x means multiply, a multiply x is congruent to 1. This is the formal mathematical definition. 1 modulo sum modulus a multiply by x is congruent to 1 modular sum modulus m. To write it in a formal way, we want to find integer such that a dot x congruent to 1. Achha, this congruent is a symbol that is used in this modulo arithmetic. Okay, simply this means is equal to. When we will mod this left hand side and this right hand side with m, then they should both be same, equal. So we can also write it as this sign, congruent sign. Okay, so now how can we find this modulo multiplicative inverse? So पहले तो let's discuss the brute force way. जैसा मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ x अंडर मॉडुलो m इज y सच दैट, सो हम y के लिए एक ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं. वी विल जस्ट रन अ लूप फ्रॉम 1 to m, राइट. x के लिए पता लगाना है हमें अंडर मॉड m, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता लगाना है x का अंडर मॉड m. तो एक लूप रन करते हैं 1 से m तक, ठीक है. लूप y फ्रॉम 1 to m, ठीक है. चेक कर लेंगे y इंटू एक्स मॉड्यूलो m करने से 1 आता है या नहीं. अगर आता है यस, देन y is modular multiplicative inverse. Y is multiplicative inverse of x under m, right. तो मिल गया. नहीं आता है तो फिर लूप को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल ब्रेक. तो ये सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लीनियर होगी, बिग O M होगी, बहुत ज्यादा होगी. हम एफिशिएंटली करना चाहते हैं, हम फिर से इसको लीनियर से लॉग में ब्रेक करना चाहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को. हाउ कैन वी डू इट? सिमिलर. अब इसके लिए मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एफिशिएंटली पता लगाने के लिए वी विल सी अ थ्योरम, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम by Fermat's little theorem. Let's see Fermat's little theorem. So what does this Fermat's little theorem says? Fermat's little theorem says a is equal to a to the power m minus 1 or I can write m minus 1 over here. M minus over here will make easier to understand. A to the power m minus 1 is equal to a. Simple language में बताता हूँ, not making it more mathematical. मॉड्यूलो m is equal to a. ठीक है, अब जरा देखो, समझो इसको क्या बोल रहा है. इफ m is प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है, जो हम ब्रेक करने वाले अभी यहाँ लीनियर से लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है. यहाँ पे लीनियर सॉल्यूशन था, लीनियर से हम लॉगरिथमिक में एक पता लगा लेंगे मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है. लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि m शुड बी प्राइम, ठीक है. जिससे भी हम मॉड्यूलो कर रहे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है. अगर प्राइम नंबर है देन वी कैन एफिशिएंटली फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट. प्राइम नंबर होना चाहिए m, ये कंडीशन है. इसी वजह से, क्योंकि m प्राइम नंबर होना चाहिए, इसी वजह से देखोगे कि सारे क्वेश्चन में m की वैल्यू ये दी गई होती है 10 to the power 9 plus 7 ये दी गई होती है, या फिर एक और वैल्यू है जो बहुत फेमस है 9928 समथिंग. लेट मी सी. हाँ, दिस वैल्यू 998244353,
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ये दो वैल्यूज दी गई होती है मॉड्यूलो करने के लिए। क्यों? क्योंकि 10 to the power 9 जो है that is very close to the upper limit of integer, right? 10 to the power 9 is very close to the upper limit of integer, and this 10 to the power 9 plus 7 are very close to the upper bound of integer as well as they both are prime. ठीक है, देखोगे दोनों के दोनों 10 to the power 9 से बहुत क्लोज भी है और दोनों के दोनों प्राइम है। 10 to the power 9 plus 7 is a prime number and this 998244353 this is also a prime number. So if you have been given these two numbers to mod in the question, then you can use this technique, Fermat's little theorem, to find out the modulo multiplicative inverse, right? So Fermat's little theorem says a minus 1 is equal to, okay, now just don't see this thing. Can you derive, if you have this Fermat's little theorem, a minus 1 modulo m is equal to a, can you from this statement derive what should be the multiplicative inverse? What should be a inverse from this theorem? We can very easily derive from this theorem. What will be a inverse? ठीक है, a m minus 1 modulo m is equal to a. ठीक है, अगर मेरे पास कोई a है, मान लो मेरे पास है 10, a is equal to 10 और कोई प्राइम नंबर है let's say 17, तो 10 को अगर 10 की अगर मैं पावर रेस करते जाता हूँ 10 to the power 9, 10 to the power 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते 17 से जस्ट एक कम 16 तक अगर मैं आऊंगा, 10 to the power 16 पे अगर मैं आऊंगा और अगर मैं उसको 17 से मॉड्यूलो करूंगा तो जो आंसर होगा वो 10 के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत क्रेजी सा थ्योरम है। ठीक है, इसका पूरा प्रूफ है, प्रूफ देख सकते हो, बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द प्रूफ ओवर हियर। सो जस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, पावर रेस करते गए, 17 मॉड्यूलो करना है, 10 को 16 तक लेके गए, फिर हमने 17 के साथ मॉड्यूलो किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो 10 के इक्वल होगा। ओके, अब इसी की मदद से हम ए इनवर्स भी पता लगा सकते हैं। अब देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे m-1 की जगह m-2 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? देखो, a को m-1 तक किया, मॉड्यूलो m किया, a आ गया। ठीक है, तो अगर मेरे पास, अगर मैं m-2 करूं, अगर मैं दोनों जगह पे पावर को 1 से डिक्रीज कर दूं, यहाँ पे पावर को 1 से डिक्रीज कर दिया, -2 हो गया, यहाँ पे भी पावर को 1 से डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे पावर एक मिनट, पावर m- ये नहीं था शायद, m- आई थिंक दिस वाज m ना, m-1 ही था। ओके, अगर मैं पावर को 1 से डिक्रीज कर दूं तो ये बन जाएगा m-2। okay, and this will become a to the power 0 which is equal to 1। so नहीं, ये फॉर्मूला में थोड़ी सी गड़बड़ आई हैव डन। वो a to the 0 थोड़ी हाँ, दिस विल बी am, दिस विल बी am। ओके, सो am, हाँ, am modulo m is equal to a। okay, am modulo m is equal to a। okay, so this is the correct formula. Let me just verify। हाँ, a to the power p modulo a mod p is equal to a mod p। okay, so a to the power m modulo m is equal to a। okay, so now let's see, अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूं दोनों साइड, a-2 modulo m, तो क्या होगा? यहाँ पे a था, -1 करेंगे a to the power 0 हो जाएगा, फिर -1 करेंगे तो a इनवर्स आ जाएगा, then we will get our a inverse। okay, यानी कि a to the power m-2 modulo m is equal to a inverse, वो a inverse के बराबर होता है। ठीक है, और a inverse के बराबर होता है, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर ये a inverse के बराबर है, जैसे a to the power m-2, अगर ये a inverse के बराबर है तो क्या होना चाहिए? इसको a के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाना चाहिए, है ना? अब क्या मैं इसको अगर a से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा? हाँ, अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा a to the power m-2 को, तो मुझे क्या मिलेगा? a to the power m-1 मिलेगा।
और a टू द पावर m माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। a टू द पावर 0 के बराबर होगा, a टू द पावर m माइनस 1 a टू द पावर 0 के बराबर होगा, राइट। a टू द पावर 1 था, यहाँ पे a टू द पावर 0 होगा, विच इज इक्वल टू 1, सो 1 मिल जाएगा। सो द डेफिनेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड ओवर हियर, so that's why the multiplicative inverse of a under prime number m is a to the power m minus 2 modulo m। बस सिंपल सा है। तो बस इसका इसका जो फंक्शन होगा वो भी सिंपल सा होगा। मॉड्यूलो इनवर्स पता लगाना है, लॉन्ग लॉन्ग मॉड्यूलो इनवर्स, ए का मॉड्यूलो इनवर्स पता लगाना है। यहाँ पे तुम लॉन्ग लॉन्ग एम लिख सकते हो या फिर एम को यहाँ पे ग्लोबल में भी दे सकते हो, ठीक है। ग्लोबल में यूजुअली ग्लोबल में देते हैं, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अगर तो जो मॉड्यूलो इनवर्स है उस दो आर्ग्यूमेंट देंगे ए और एम, और ए टू द पावर एम माइनस 2 अंडर मॉड्यूलो एम रिटर्न कर देंगे। तो इससे मुझे मॉड्यूलो इनवर्स पता चल जाएगा ए का अंडर एम। अब मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन का तो हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पे कोड देख लिया हमने पहले ही। ओके, सो प्रीटी सिंपल थिंग। तो यहाँ पे भी जो डिवीजन पे, लेट्स कम बैक टू दिस डिवीजन। तो यहाँ पे भी डिवीजन पे जो बोला गया था a डिवाइडेड बाय b मॉड्यूलो m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b इनवर्स मॉड्यूलो m। तो वो ये b इनवर्स का मतलब है b इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b अंडर मॉड्यूलो m। और अगर मुझे डिवीजन करना हो तो, और अगर मुझे b इनवर्स पता लगाना हो तो मैं कैसे b इनवर्स पता लगाऊंगा, यही इस फंक्शन की मदद से पता लगा लूंगा, ठीक है। लॉग टाइम लगेगा मुझे, लॉग का एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो देखोगे ये सब तो बिग O 1 में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉग, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लॉग का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ओके, अब मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस कर लिया। अब देखो एक और मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता लगाने की टेक्निक है, ठीक है। वो टेक्निक क्या है, यहाँ पे हम वी आर लिमिटेड ओवर हियर, द m शुड बी प्राइम, दिस लिमिट्स ourselves। बहुत सारे कुछ कभी कभी यू कैन एनकाउंटर सम क्वेश्चंस in which they have intentionally given you a value of m which is not a prime number, ठीक है, which is not a prime number but it is co-prime to m। ये तो एक टेक्निक होती है when m is prime। लेकिन if a and m are co-prime then also there is a technique to find the modulo multiplicative inverse, ठीक है, you, and that is extended Euclid formula। एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम। अच्छा, तुम लोगों को यूक्लिड एल्गोरिथम तो पता होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या करता है, यूक्लिड एल्गोरिथम कहाँ यूज करते हैं, बताओ कोई। जीसीडी पता लगाने में यूज करते हैं ना यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जीसीडी पता लगाने के लिए यूज करते हैं, ओके। उसी तरीके से एक एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम भी होता है। एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, और उसी एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम जीसीडी से रिलेटेड एक इक्वेशन होता है उसे सॉल्व करने के लिए, और उसी एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से हम इस केस में पता लगा सकते हैं इफ a and m आर को प्राइम, ठीक है, देन वी कैन फाइंड मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a यूजिंग दिस एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, इस वी विल नॉट डिस्कस दिस इन डिटेल, ओके, बट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू are curious enough, so you can check this out on GFG, you can check this out, or on CP algorithms as well you can check this out, extended Euclid algorithm, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने, ये इक्वेशन इसे सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू GCD ऑफ AB। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मुझे x और y की कोई भी ऐसी वैल्यूज पता लगानी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इस केस में यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में इसका यूज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये
एल्गोरिदम है कि ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो टाइम हमारे पास उतना है नहीं, लेकिन देख लेना ये यहाँ पे देखना मिल जाएगा तुम्हें एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। Idea is to use extended Euclid algorithm that takes two integers a and b, finds their GCD and also finds x and y। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन में हम थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं जिसकी मदद से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता चल जाएगा। ठीक है, देखो GCD ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू GCD ए बी, हमें x और y की वैल्यू पता लगानी है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, अगर मान लो कि ये b नहीं है ये p है, ठीक है, प्राइम हमारा वो है पावर है, b इज आर पावर, हमें a टू दी पावर b पता लगानी है, a टू दी पावर b मॉडुलो m पता लगाना है, a टू दी पावर b, हाँ ये b मान लो कि ये b इज द मॉडुलो, ठीक है, देन a टू दी पावर x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्योंकि जो हमारा a है और जो हमारा मॉडुलो है m, जो हमारे जिसके साथ हम मॉडुलो करना चाहते हैं b के साथ, दे बोथ आर को प्राइम, so if they both are co-prime, so if we will do this ax plus my, then we will get 1, okay। So now we have to solve this equation to find our multiplicative inverse, and then we will, using extended Euclid algorithm, we will be able to find the value of x and y। so यहाँ पे जो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी that will be the multiplicative inverse for a। यहाँ पे देखो क्या होगा, दिस टर्म विल गेट डिवाइडेड बाय मॉड m, अंडर मॉड m करना है, तो इस टर्म में देखोगे इस टर्म में m ऑलरेडी है जिसके साथ हम मॉड्यूलो कर रहे हैं, तो इस टर्म में m ऑलरेडी है, तो अगर इसको मॉड m करते हैं तो ये टर्म तो जीरो बन जाएगा, ये टर्म जीरो बनेगा, इसका मतलब ax को हमने मॉड किया m के साथ और हमें मिल गया 1, इसका मतलब x क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए a का, तभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है, ठीक है, जो x will be the multiplicative inverse। यहाँ पे है एल्गोरिदम को डिस्कस किया गया, यहाँ पे कोड है, ओके, सो चेक दिस आउट लेटर। नाउ मूविंग ऑन, ओके, सो अभी तक हमने काफी मॉड्यूलो मॉड्यूलो अरिथमेटिक ये सब डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स कम टू दिस एनसीआर कॉम्बिनेटोरिक्स। एनसीआर सबको पता होगा, एनसीआर को अगर पता लगाना होता है तो क्या मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे मेथड से एनसीआर को कैलकुलेट करने का। एक तो ब्रूट फोर्स मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रूट फोर्स मेथड से लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है एन, ठीक है, बिग ओ मैक्सिमम ऑफ एन कॉमा आर, ऐसे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है। डीपी की मदद से सॉल्व कर सकते हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अप्रोच हैं, पास्कल्स ट्राइंगल बना के जो सॉल्व करते हैं उसकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं एनसीआर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि सारे जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तरीके होते हैं। अगर मैं डीपी की मदद से भी सॉल्व करूं तो डीपी की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ n इंटू आर होती है, बिगो n इंटू आर, अगर मुझे एनसीआर पता लगाना है, ठीक है। पास्कल्स ट्राइंगल की मदद से कैलकुलेट करूं, डीपी और डीपी में पास्कल्स ट्राइंगल ही यूज होता है, तो बिगो n इंटू आर की टाइम कॉम्प्लेक्स लगती है। हमें क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली एनसीआर को पता लगाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का। इस फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है, फैक्टोरियल यूज हो रहा है, हम भी फैक्टोरियल की मदद से एनसीआर को पता लगाएंगे। अगर हमें एनसीआर पता लगाना है, अगर n की वैल्यू मान लो 10 टू द पावर 6 तक है, 10 टू द पावर 6-7 तक है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, 10 टू द पावर 6-7 तक है। r की भी वैल्यू अगर 10 टू द पावर 6-7 तक है, हमें एनसीआर पता लगाना है, n की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 10 टू द पावर 6 या 7 के रेंज में, r की भी मैक्सिमम वैल्यू 10 to the power 6 या 7 के रेंज में। So what we can do, we can pre-calculate the values of factorial
store it somewhere, store it in an array, and then we can use our knowledge of modulo arithmetic to find the value of NCR. Okay, तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक से कैसे पता लगाएंगे एनसीआर? एनसीआर में तो फैक्टोरियल भी हो रहा है, डिवीजन में भी है, तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक से कैसे पता लगाएंगे? हमने डिवीजन में देखा था, कि जब हम लोग डिवीजन करते थे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज करते थे। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल को स्टोर भी करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत ही एफिशिएंटली बिग ओ वन टाइम में एनसीआर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। बस हमें कुछ प्री कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, वो प्री कैलकुलेशंस अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, सो NCR n factorial n factorial divided by n minus r factorial, right? तो अगर मुझे एनसीआर को बहुत सारे केसेस में जहाँ पे एनसीआर यूज हो रहा है वहां पे किसी ना किसी से मॉड्यूलो करने दिया गया होगा, क्योंकि एनसीआर की वैल्यूज ना बहुत बड़ी हो जाती है। एन और आर की वैल्यूज जरा सी भी बड़ी हुई, थोड़ी सी भी बड़ी हुई, तो एनसीआर की वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। मान लो 20C10 अगर तुम्हें पता लगा रहा है, 20C10 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, 10⁻9 से भी आई गेस बहुत बड़ी होगी 20C10, क्योंकि 20 फैक्टोरियल, यू कैन सी 20 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल्स बहुत ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं। 10 फैक्टोरियल में कुछ 10⁸ तक के आसपास होता है। जैसे ही फिर तुम जब 20 फैक्टोरियल तक जाओगे तो देखोगे हर एक 10 के बाद 11 मल्टीप्लाई करने पे, 12 मल्टीप्लाई करने पे, 13 मल्टीप्लाई करने पे एक एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। तो 10⁻20 तक जाते जाते तो बहुत 10⁻18 या उससे भी बड़ा ऑलरेडी इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 20 पता लगाते लगाते। तो 20C10 अगर मुझे पता लगाना है तो वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। और अगर 200C100 पता लगाना है, ठीक है, तब तो वो तो और भी ज्यादा बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो इसीलिए इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यूज के साथ इसलिए डील करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे एनसीआर यूज हो रहा होता है वहां पे किसी ना किसी के साथ हमेशा मॉड्यूलो करने के लिए दिया गया होगा। ओके, तो बहुत सारे केसेस में हमें एनसीआर मॉड्यूलो एम पता लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी मॉड्यूलर अरिथमेटिक का जो भी हमने अभी तक नॉलेज सीखा है वो यूज कर सकते हैं। कुछ प्री कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फैक्टोरियल्स की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ये जो सिंपल फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है एनसीआर मॉड्यूलो एम। तो हमें बेसिकली एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इसको मॉड्यूलो एम पता लगाना है। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब डिवाइड करना होता है, मान लो ये एक टर्म है ए और ये दूसरा टर्म है बी, तो इन दोनों को डिवाइड करें हम। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल मॉड्यूलो एम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये इनवर्स में आ जाएगा इंटू आर फैक्टोरियल इनवर्स यहाँ पे भी एक मॉड्यूलो एम, इसका भी मॉड्यूलो एम कर सकते हैं, इसका भी मॉड्यूलो एम कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इनवर्स करेंगे, इनवर्स के बाद फिर से एक मॉड्यूलो एम करेंगे, तो इसके बराबर एनसीआर मॉड्यूलो एम इस चीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे एन फैक्टोरियल मॉड्यूलो एम, एन फैक्टोरियल मॉड्यूलो एम, अगर मुझे ये चीज पहले से मैंने प्री कैलकुलेट कर रखी है, अगर मैंने ये एन माइनस आर फैक्टोरियल मॉड्यूलो एम ये भी पहले से कैलकुलेट कर रखा है, आर फैक्टोरियल मॉड्यूलो एम ये भी मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, इसके इनवर्स भी अगर मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं, यानी कि सारे के सारे फैक्टोरियल्स और उनके सारे इनवर्स अगर मैंने ये पहले से ही प्री कैलकुलेट किए हुए हैं, तो सिर्फ बिगो वन टाइम में मुझे एनसीआर की वैल्यूज पता चल जाएगी, राइट। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एनसीआर मॉड्यूलो एम, क्या इस पूरे को इन्वर्स करूं या फिर मैं इस टर्म को इन्वर्स करूं मल्टीप्लाई बाय इस टर्म को इन्वर्स करूं, दोनों सेम ही होगा, दोनों बराबर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 और हाँ दिस थिंग -1। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ।
नाउ सी, यहाँ पे हम इस फंक्शन में हम एनसीआर पता लगा रहे हैं, n टू द पावर r। अगर n r से छोटा है, n तो r से छोटा होना नहीं चाहिए, ठीक है, उस केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे। r भी 0 से कम नहीं हो सकता, n भी 0 से कम नहीं हो सकता, n एंड r बोथ शुड बी पॉजिटिव नंबर, राइट, 0 और पॉजिटिव नंबर। सो इसीलिए अगर इन तीनों में से एक भी चीज वायलेट हो रही है, रिटर्न 0 कर देंगे। नहीं हो रही है तो जो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला पता लगाया n फैक्टोरियल मॉड्यूलो m, तो ये फैक्ट n फैक्ट क्या स्टोर कर रहा है यहाँ पे, मॉड्यूलो m, ओके, n फैक्टोरियल मॉड्यूलो m स्टोर कर रहा है, तो फैक्ट n ले लिया, n फैक्टोरियल मॉड्यूलो m, फिर यहाँ पे i फैक्ट r लिया, यानी कि ये n माइनस r फैक्टोरियल मॉड्यूलो m, ठीक है। i यहाँ पे क्या डिनोट करता है, इनवर्स, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स लेना है, तो ये ठीक है, r फैक्टोरियल माइनस 1 r फैक्टोरियल मॉड्यूलो m का इनवर्स वो ये है, ठीक है, r फैक्टोरियल, और ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल का जो इनवर्स था वो यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल का इनवर्स, ठीक है। और हमेशा जब भी दो टर्म को मल्टीप्लाई किया हमने तो एक मॉड्यूलो m भी कर लेना चाहिए, हर एक स्टेप में मॉड्यूलो m करना चाहिए टू अवॉइड एनी ओवरफ्लो इशू। तो यहाँ पे इसीलिए मॉड्यूलो m किया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया n माइनस आर के इनवर्स फैक्टोरियल से, और फिर मॉड्यूलो m किया, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, इससे कैसे एनसीआर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और उसे फिर रिटर्न करेंगे। अब देखते हैं फैक्टोरियल और आई फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने बोला था अगर n और r की वैल्यूज जो है वो 10 टू द पावर 6 या 7 इससे अगर छोटी है तो उसको हम प्री कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्री कैलकुलेशन में। तो प्री कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने मान लो 10 टू द पावर 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है n और r की वैल्यूज, तो मैंने फैक्टोरियल लिया, इनवर्स फैक्टोरियल लिया, एरे लिया दोनों का, मैक्स mxn, ठीक है, इनका साइज है। उसके बाद यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 0 तो 1 होना चाहिए, फैक्टोरियल i क्या होना चाहिए, i इंटू फैक्टोरियल i माइनस 1 मॉड्यूलो m, तो सिंपल है। उसके बाद फिर क्या किया है, उसके बाद इनवर्स कर दिया, ठीक है, i फैक्टोरियल मैक्सिमम n माइनस 1, ठीक है, जो लास्ट i फैक्टोरियल था, लास्ट नंबर का जो इनवर्स फैक्टोरियल था, उसके लिए मैंने मॉड्यूलो इनवर्स ये फंक्शन यूज किया। यहाँ प्री कैलकुलेट से पहले ये वाला फंक्शन भी डाल देना जब भी यूज कर रहे होगे, तो ये मॉड इनवर्स वाला, मॉड एक्सपोनेंशिएशन वाला, ये दोनों भी डाल देना, ठीक है। मॉड्यूलो इनवर्स पता लगाया मैंने फैक्टोरियल ला एम एक्स एन माइनस 1 का, ठीक है, मॉड्यूलो इनवर्स पता लगाया और वो यहाँ पे आई फैक्टोरियल में दे दिया। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ लूप लगा के सबका मैं डायरेक्टली ऐसे ही मॉड्यूलो इनवर्स की मदद से पता लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। उसमें देखोगे मैक्स एन 1e6 है, तो 1e6 के साथ साथ एक लॉग 1e6 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। मैं बिगो 1e6 में ही करना चाहता हूँ, ठीक है, बिगो मैक्स एन में ही पता लगाना चाहता हूँ, उसके साथ एक एक्स्ट्रा इनटू लॉग मैक्स एन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा फास्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, बस एक नंबर का ही मॉड्यूलो इनवर्स किया, उसके बाद बाकी नंबर्स का अगर मुझे पता लगाना है तो मैं बस मल्टीप्लाई बाय आई कर दूंगा। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन ये करेक्ट है, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ आ जाएगा ये करेक्ट क्यों है। लूप रन किया, बैक लूप रन किया, ठीक है, मैक्स एन माइनस 1 से आई ग्रेटर देन 0 तक, आई फैक्ट आई माइनस 1 इज इक्वल टू आई फैक्ट आई इंटू आई, ठीक है। आई फैक्ट आई क्या होगा, इसका ऑलरेडी इनवर्स पता चल गया होगा, तो इसका ये क्या होगा, ये इनवर्स होगा। सपोज मान लो कि यहाँ पे मुझे 9 की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो मुझे 9 की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है, 9 की वैल्यू पता लगानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई फैक्ट 10 लूंगा। आई फैक्ट 10 एक्चुअली क्या डिनोट करता है, आई फैक्ट 10 डिनोट करता है 1/10 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका मॉड्यूलो डिनोट करता है आई फैक्ट आई, 1 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। अगर 1 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल को अगर मैं आई यानी कि 9 से मल्टीप्लाई, आई यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या मिल जाना चाहिए मुझे, तो मुझे 1/9 फैक्टोरियल मिल जाना चाहिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/9 फैक्टोरियल मिल जाएगा मुझे, और यहाँ पे मुझे आई फैक्टोरियल 9 में क्या स्टोर करना था, 1/9 फैक्टोरियल ही तो स्टोर करना था, ठीक है, 9 फैक्टोरियल का इनवर्स अंडर मॉड्यूलो m स्टोर करना था। तो इसीलिए आई फैक्टोरियल आई को आई से मल्टीप्लाई किया, मॉड किया, आई फैक्टोरियल आई माइनस 1 में डाल दिया, ओके। तो ये इस तरीके से इजिली प्री कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं।
तो एनसीआर मॉड्यूलो एम, ठीक है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, पास्कल्स ट्रायंगल, डीपी, ये सब भी तुम्हें पता होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स में ज्यादातर यही मेथड यूज किया जाता है एनसीआर पता लगाने के लिए। चलो अब एनसीआर मॉड्यूलो एम कर लिया। अब थोड़ा टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम, अभी थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। कॉइन बेगर फॉर्मूला पे आते हैं। कॉइन बेगर फॉर्मूला, तो ये तुम लोगों को शायद पहले से पता होगा। कॉइन बेगर फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। देखते हैं कॉइन बेगर फॉर्मूला है क्या। सो लेट्स say that there are n number of coins. I have n coins and there are r beggars. Now I have to distribute my n coins to r beggars in ठीक है। Then in how many ways can I distribute my n coins? So basically the number of ways to divide n coins among r beggars. कितने तरीके से n coins को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं r beggars में, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसके और भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, ठीक है। जो जनरल स्टेटमेंट होता है वो होता है द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n इक्वल आइटम्स अमंग r डिस्टिंक्ट कंटेनर्स। ये यहाँ पे डिस्कस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो इसका जनरल स्टेटमेंट होगा द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n इक्वल आइटम्स अमंग r डिस्टिंक्ट कंटेनर्स। तो देखते हैं, तो इसका आंसर होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब ये क्या कैसे आता है इसका आंसर, इसका एक शॉर्ट प्रूफ देखते हैं। तो लेट्स सपोज आई हैव n कॉइन्स एंड r माइनस वन। n कॉइन्स है, n कॉइन्स को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, r पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे n कॉइन्स को r बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने। तो n कॉइन्स को मुझे r पार्ट्स में डिवाइड करना है और मुझे देखना है कि वो n कॉइन्स को मैं r पार्ट्स में कितने तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, मुझे वो पता लगाना है। तो मान लो n कॉइन्स है और r माइनस वन स्टिक्स है मेरे पास, ठीक है। तो r माइनस वन स्टिक्स से क्या होगा, मान लो कि ये वन कॉइन को डिनोट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेट्स से n इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 4। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे, तो 1 की जगह 0 बोलते हैं इसे, 0, ठीक है। 0 डिनोट करता है कॉइन्स को। 4 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, सो आई विल टेक 3 स्टिक्स। तो ये 1 क्या डिनोट करेगा, ये स्टिक्स को डिनोट करेगा। तो अब देखो, अगर मैं 1 को इनके बीच में कॉइन्स के बीच में डालता हूं, तो कॉइन्स जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया ये, तीसरा पार्ट हो गया ये, चौथा पार्ट हो गया ये, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मुझे अलग अलग तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डिवाइड करना होगा इन 8 कॉइन्स को, तो मैं बस क्या करूंगा, ये जो 1 की जो पोजीशन है उसे बस मैं चेंज करूंगा। अगर मैं इस 1 को यहां से यहां डाल दूं तो क्या होगा, तो अलग तरीका मिल गया मुझे, ठीक है। डिफरेंट वे मिल गया मुझे, इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, डिफरेंट तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं वन को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, एक और 1 को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। 3 1 है, 4 पार्ट है। देखो इस पार्ट में 0 कॉइन्स है, पहले बेगर को मैंने एक भी कॉइन नहीं दिया। इस कॉइन में 0 कॉइन्स है, दूसरे बेगर को भी मैंने कोई सा भी कॉइन नहीं दिया। तीसरे बेगर को मैंने 1 2 3 4 5 कॉइन्स दे दिए, चौथे बेगर को मैंने 3 कॉइन्स दे दिए। तो ये जो नंबर ऑफ वेज है डिवाइड करने में, इसमें मैं किसी बेगर को 0 कॉइन्स भी दे सकता हूँ, ओके। तो इस तरीके से भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ से क्या एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। इसमें क्या है, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है 8 कॉइन्स हैं और 3 स्टिक्स हैं। तो बेसिकली मेरे पास 11 आइटम्स है, ओके। आई हैव 11, 11 मींस n प्लस r माइनस वन आइटम। सो आई हैव n प्लस r माइनस वन आइटम्स। तो बस इन n प्लस आर माइनस वन का एक परम्यूटेशन पता लगाना है। अगर मैं इन n प्लस आर माइनस वन को अलग अलग तरीके से परम्यूट करूं, अगर मैं इस 1 को यहां से यहां डाल दूं, ठीक है, या फिर यहां से कहीं और डाल दूं, मतलब अलग अलग तरीके से परम्यूट करता जाऊंगा, तो अलग अलग वेज मुझे मिलते जाएंगे। तो इन n प्लस आर माइनस वन आइटम्स को बस परम्यूट करना है मुझे, इनके परम्यूटेशन के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो पता लगाना है। तो ये n प्लस आर आइटम्स हैं और इसमें n आइटम्स सेम है और r माइनस वन आइटम सेम है, राइट। और मुझे इनका परम्यूटेशन पता लगाना है। तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे, सिंपल है, n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल पता लगाएंगे और जो भी इक्वल आइटम्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। n इक्वल आइटम्स है उससे डिवाइड किया और r माइनस वन आइटम्स है उससे भी डिवाइड कर दिया।
So in these many ways we can make permutation, and this is our final answer. So in these many ways we can divide n coins among r beggars. Okay, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n plus r minus 1 c r minus 1, या फिर सी एन भी लिख सकता हूँ, या फिर सी आर माइनस 1, बोथ आर सेम. ओके, तो एक शॉर्ट तो प्रूफ पता चल गया इसका, ये बहुत बार यूज होता रहता है. सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद भी ना रहे तो ये लॉजिक याद रखना. लॉजिक याद रखना, n इक्वल आइटम्स है, r डिस्टिंक्ट कंटेनर्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो 8 कॉइन्स ले लिए, r माइनस 1 स्टिक्स ले लिए, उनका नंबर ऑफ परम्यूटेशन, बस ये लॉजिक याद रखो, फॉर्मूला तो तुरंत फिर डिराइव कर लोगे. ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूलाज देख लेते हैं. तो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा सबने, परम्यूटेशन हाई स्कूल में जब परम्यूटेशन पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा. NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस 1 CR. ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है. ठीक है, इसके बारे में तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. इसका प्रूफ चाहिए होगा तो प्रूफ भी कर सकते हो, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को ऐड कर देना, देखना राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा. एक दूसरा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देखते हैं जो देखने को मिल जाता है, काफी बार देखने को मिला है मुझे, एक्चुअली काफी सारे प्रॉब्लम्स में देखने को मिला है ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो क्या है. बेसिकली इस फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन है इस वाले फॉर्मूला में. ये क्या है, अगर मान लो कि मुझे ये समेशन पता लगाना है, कॉम्बिनेशंस का समेशन पता लगाना है बेसिकली. और कॉम्बिनेशंस किस टाइप के हैं, ये जो ऊपर जो n है वो इंक्रीज होता जा रहा है. पहले n था, देन आई हैव n प्लस 1, देन आई हैव n प्लस 2, देन आई हैव n प्लस 3, देन आई हैव n प्लस k. सो ये जो ऊपर जो n है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और नीचे जो k की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जा रही है. पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर k. ठीक है, तो नीचे भी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है, ऊपर भी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इस समेशन का रिजल्ट होता है n प्लस k प्लस 1 ck. कैसे देखते हैं, इसी फॉर्मूला की मदद से डिराइव कर सकते हैं. NC0 है, NC0 को क्या मैं n प्लस 1 C0 भी लिख सकता हूं. हाँ, क्योंकि NC0 क्या होता है, NC0 1 होता है, n प्लस C0 भी तो 1 ही होता है ना, तो ऐसे में लिख सकता हूं. राइट, तो n प्लस 1 C0 इसके बाद देखो, तो इसको मैंने चेंज कर दिया n प्लस 1 C0 में. अब n प्लस 1 C1, अगर मैं इसके साथ इसे ऐड कर दूं n प्लस 1 C1, तो देखो क्या होगा, n प्लस 1 C0 है, n प्लस 1 C1 है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाना चाहिए, NCR माइनस 1 NCR, n प्लस 1 CR आ जाना चाहिए. तो दोनों को ऐड करने से क्या मिलना चाहिए मुझे, n ठीक है, n प्लस 2 C1, ये मिल जाना चाहिए. राइट, उसके बाद ये जो तो इस टर्म को मैंने ऐड कर दिया, हमें मिला n प्लस 2 C1. अब n प्लस 2 C1 को अगर मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, n प्लस 3 C2. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में n प्लस 3 C2 मिलेगा, फिर n प्लस 3 C2 जो मिलेगा उसको मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, n प्लस 3 C4. तो देख लो एक पैटर्न देखो, इसी तरीके से एक एक टर्म को जब ऐड करते जाएंगे तो मुझे ऐसे n प्लस k प्लस 1 ck मिलता जाएगा, और एट द एंड माय आंसर इज गोइंग टू बी n प्लस k प्लस 1 ck. ओके, ठीक है, ये था. अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें भी अप्लाई किया है, इसकी जगह कुछ और समेशंस में भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. बस ये याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो और इसको कैसे अप्लाई करना है वो याद रखो. ठीक है, टर्म दिया होगा, टर्म को इस फॉर्मूला की मदद से ऐड कर सकते हैं, ऐड करके एक जो फाइनल टर्म मिलेगा उसे फिर मैं नेक्स्ट टर्म में ऐड करूंगा, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसे मैं नेक्स्ट टर्म में ऐड करूंगा, फिर नेक्स्ट टर्म में ऐड करूंगा,
ऐसे ऐड करता जाऊंगा, देन फाइनली आई विल गेट वन टर्म. ओके, एंड दैट वन टर्म इज ओवर हियर n प्लस के प्लस वन सी के. और n प्लस के प्लस वन सी के की वैल्यू तो हमने देखी. अगर मुझे अंडर मॉड्यूलो m पता लगाना है तो वही प्री कैलकुलेशन जो किया था उसकी मदद से पता लगा सकता हूँ एफिशिएंटली. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ वेज पता लगाने के लिए दिया होगा, एंड व्हेन you will try to solve it, you will get something like this type of formula, and then you can reduce this formula to just one term, one combinatorics term, and then you can you can find that term in bigger one and solve the problem quickly. So I think we are up with the time. Anyone has any doubt? We have discussed बेसिक चीजें डिस्कस कर लिए. मैथ्स में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स था, ये डिस्कस किया. डी अरेंजमेंट्स भी तुम और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. डी अरेंजमेंट्स कभी कभी किसी प्रॉब्लम में देखने को मिल सकता है, लेकिन डी अरेंजमेंट्स के भी फॉर्मूला होते हैं. इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है. और जैसे यहाँ पे तो ये था नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन इक्वल आइटम्स. अगर एन इक्वल आइटम्स की जगह एन डिस्टिंक्ट आइटम्स होते हैं, आर इक्वल कंटेनर्स होते हैं, उस केस में क्या है, यानी कि यहाँ पे इक्वल डिस्टिंक्ट को चेंज करते जाओ. इक्वल आइटम्स इक्वल कंटेनर्स, डिस्टिंक्ट आइटम्स डिस्टिंक्ट कंटेनर्स, उस केस में कैसे पता लगाते हैं. तो वो बहुत सारे और आगे बहुत सारी चीजें उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो. और मैथ्स में तो अभी बहुत है, अभी तो बहुत कुछ तो डिस्कस भी नहीं किया है. तो ये बेसिकली मैथ की एक वीडियो थी. हो सकता है फ्यूचर में we also take another class of mathematics where we discuss some other topics, जैसे फिबोनाची सीरीज भी है, उसमें भी बहुत कुछ है फिबोनाची सीरीज में. फिर मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन था, एक वो भी होता है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन भी होता है. फिर ऑयलर्स फाइव फंक्शन, ये सब भी होते हैं. बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैथ में, तो टॉपिक्स भरे पड़े हैं. किसी को कोई डाउट है अभी तक? तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. एक बार रिवाइज कर लेना. आई शेयर द पीपीटी. ओके, ये रिवाइज कर लेना. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड. ओके, मैशअप जो होगा उसके भी प्रॉब्लम्स ट्राई करना. कोई डाउट है किसी को? नो भैया. चलो फिर देन लेट्स रैप अप टुडेज क्लास. ओके.